Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Dhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is chapter number 12, that is exponent and power. In our previous video, we learned about exponent and power. What is exponent? What is power? Okay, and we know that अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 into 3 into 3 into 3, then can be written as 3 to the power 5. Okay, here 3 is the base and 5 is the exponent or index or power, or we read it 3 raised to the power 5. ओके, सेम हियर हम उसे क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो इन क्लास 7 a brief description of exponent has been given where the exponent were limited to natural numbers. In this chapter we shall learn the basic rule of exponent with integral power 2. Okay, understand. If we can see that हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, एक्सपोनेंट और पावर की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस नंबर्स. So for very big number or very small number, how we return, it is the main problem. Okay, suppose mass of the earth, see here 24 zeros are here. So how you write this number. So when you want to write this number in easy way, so we can write it in the form of exponent. Okay, it's very easy to write. Okay, and if the suppose we want to find very small number, any small number, we can say that अगर कोरोना वायरस का साइज आपको पता करना है, so this is very small size. Okay, so this size, अगर हमें इस टाइप के कोई वायरस का या कोई एटम का अगर साइज पता करना है और उसे लिखना है, so we can write it in simpler way in exponent and power. Okay, understand. So in exponent and power we can write any big number or small number in simpler way. Okay, understand. So in our previous video we learned what is in our previous video we learned about some formula or some law of exponents. Okay, and we know a to the power, if a is any non-zero integer, so a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m, where m is a positive integer and a to the power m is multiplicative inverse of a to the power m. Okay, understand. So what about law of exponents. हमें law of exponent जो हमने पढ़े हैं वो हमने पढ़े. फर्स्ट लॉ हम बोल सकते हैं, अगर बेस सेम है, इफ द बेस आर सेम एंड पावर इज डिफरेंट, देन पावर ऑलवेज एडेड. ओके, इफ a to the power m into a to the power n, so we can add the powers. Okay, understand, means a to the power m plus n. Okay, understand. And if base are same, see हम क्या करते हैं इसमें, and power are different and the two numbers are in division, so we can write it a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n, where m and n are integer and which condition is necessary, m is greater than n. So हम उसे लिख सकते हैं ऊपर m minus n. Okay, understand. See here some law जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. ओके, a to the power m whole power n अगर होता है तो हम लिखते हैं a to the power m into n, मीन्स उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, जो पावर है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, एंड इफ बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, then we can write a to the power m and b to the power also m, so we can write a into b whole power m. Okay, understand. Now a to the power m upon b to the power m, same base different है but power same है, so we can write it a upon b whole power m. Okay, understand. And if a to the power 0, then we can write 1. Okay, understand. So this is the main law of exponent. Okay, now see which हम क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power minus 3. So
2⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ द नंबर हैविंग पावर नेगेटिव पावर, सो वी कैन राइट 1/a⁻m। ओके, सो हमने 2⁻³ को क्या लिखा, 1/2⁻3। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2⁻3? सो हम लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 2, so it become 8. So 1/8 is your answer. Okay, अंडरस्टैंड। सेम अगर डिवीजन में, अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, माइनस पावर है, तो वो क्या हो जाएगी, इट बिकम न्यूमरेटर। ओके, सो 3 मीन्स 3 × 3 that is 9. ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सिंप्लीफाई -4⁵ into -4⁻10. So here see, base is same, -4 and -4, and power is different. Okay, means base same है, power different है, और दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। सो वी कैन, हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, -4⁵ प्लस -10। ओके, जो पावर है वो ऐड हुई है, बट प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर दो नंबर दिख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस, सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ है वो। ओके, सो वी कैन गेट 5 - 10 एंड वी गेट -4⁻5, एंड वी नो व्हाट वी लर्न, अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं, मीन्स 1/4 -4⁵. ओके, अंडरस्टैंड। सो हमने वही किया है यहाँ पर। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सेकेंड वन, 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁻6। सो हम क्या करेंगे, दोनों डिवीजन में हैं, हम डिवीजन की पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो 2⁵ माइनस -6, सो इट बिकम सी 2⁵ minus -6. So we know that minus into minus plus, so it become 2⁻11. Okay, understand? So this way we can solve the question. Remember one thing, जो आपको माइनस साइन अगर पावर में दिख रहा है, पावर में होगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर वो नंबर के साथ में नेगेटिव साइन है, जैसे यहाँ -4 था तो -4 एज इट इज़ रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड। एक्सप्रेस 4⁻³ एज अ पावर विद द बेस 2। तो हमें पता है हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ओके, सो 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2², और 4 को हम लिख सकते हैं 2²। ओके, सो हम क्या करेंगे, 4⁻³ है तो 2 × 2 होल पावर -3। ओके, सो 2² होल पावर -3। सो हमें पता है पावर की पावर क्या होती है, ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है। सो वी हैव मल्टीप्लाई, बिकॉज वी नो दैट, आपको यहाँ पर इस टाइप से आंसर में लिखना भी है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 2² होल पावर -3, डेट मीन्स 2² × -3, 2 × 3 6, एंड माइनस साइन हो जाएगा साथ में। सो 2 × 3 = 6, that is 2⁻6, or you can write it 1/2⁻6. Okay, both are right answer. Now see the example number 4. Simplify and write the answer in the exponential form. आपको exponential form में लिखना है। Okay. Okay student, so 2⁵ divided by 2⁸ whole power 5 into 2⁻⁻5। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है। सी हियर 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ होल पावर 5। सो आपने पहले लास्ट ईयर क्लासेस में आपने पढ़ा है बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम ब्रैकेट को ही देखेंगे पहले, मीन्स 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸। सो इस ब्रैकेट में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और बीच में साइन है डिवीजन का। ओके, एंड इफ द साइन इज डिवीजन, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द पावर्स। ओके, तो हमने क्या किया, पावर सब्सट्रैक्ट करी, 5 - 8। जब 5 में से 8 माइनस, बाकी का सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है,
सी हमने खाली अंदर वाला ही चेंज किया है, यहाँ पर हमने पावर खाली डिवाइड करी है, बाकी 2 टू दी होल पावर 5 थी ब्रैकेट की, इंटू 2 की पावर -5 एज इट इज़ लिखना है. ओके, नाउ 5 minus 8 you can get -3. So 2 to the power -3 whole power 5 into 2 to the power -5. स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कोई भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है. ओके, नाउ अब हमें पता है कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. सो वी कैन डू 2 to the power -3 into 5. सो -3 into 5 कितना हो जाता है. सी आपको यहाँ पर एक स्टेप लिखनी है, बुक में नहीं लिखी है तो भी आपको लिखनी है. आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2 की पावर -3 into 5 into 2 to the power -5. सो ये -3 into 5 कितना हो जाएगा, -15. अब -15 सी 2 की पावर -15 इंटू 2 to the power -5. अब दोनों 2 की पावर हैं तो हम करेंगे -5 इंटू -15 इंटू -5. सो यू कैन गेट 2 to the power -20 and you can write it 1/20. Okay, understand? Now see the second one. So second के उसमें हम करेंगे -4 to the power -3 इंटू 5 to the power -3 इंटू -5 to the power -3. See, सब पावर -3 दिख रही है, मीन्स all the number having same power. So we can write it -4 into 5 into -5 whole power -3. Okay, so we get 100 whole power -3, 1/100 to the power 3. Okay, understand? हमने क्या किया, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके, दो माइनस साइन है हमारे पास में यहाँ पर, -4 एंड -5. सो माइनस माइनस प्लस, 4 5s are 20 and 25s are 100. So 100 to the power -3 and we get 1/100 to the power 3. Okay, understand? Now see the third one. 1/8 into 3 to the power -3. सो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, हमें 8 के जब फैक्टर्स करते हैं सो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर -3. अब यहाँ पर अगर 1/2 टू दी पावर 3 है तो हम उसे ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर -3 इंटू 3 टू दी पावर -3. अब दोनों की पावर सेम है, सो वी कैन राइट 2 इंटू 3 होल पावर -3, दैट इज 6 टू दी पावर -3. And 6 to the power -3 is equal to 1/6 to the power 3. Okay, understand? So this way you have solved the questions. Okay. See example, fourth question. -3 whole power 4 into 5/3 whole power 4. अब -3 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3 होल पावर 4 अब इंटू 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4. सो -1 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4. नाउ अगर -1 की पावर 4 है तो आप -1 की पावर 4 को या -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके, सो अगर हमारे पास में कोई नेगेटिव नंबर की इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ओके, -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1. ओके, अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ पर हमारे पास में 3 टू द पावर 4 से 3 टू द पावर 4 हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज बोथ हैविंग सेम नंबर एंड सेम पावर, तो बोथ कैंसिल हो जाएंगे. -1 टू द पावर 4 बिकम 1 एंड 5 टू द पावर 4 इज योर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. फाइंड m सो दैट, अब हमें यहाँ पर m फाइंड करना है इस टाइप के क्वेश्चन में. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 टू दी -3 की पावर m+1 इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7. सी बेस सबके सेम है -3. ओके, अब -3 की पावर है m+1 इंटू -3 की पावर है 5 इज इक्वल टू -3 की पावर है 7. सो जब हम -3 की पावर को देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं -3 की पावर m+1 + 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7. सो 1 + 5 हो जाएगा 6, सो हमारा हो जाएगा m+6 और -3.
अब ये दोनों ही -3 की पावर हैं. ओके, ऑन बोथ साइड पावर हैव द सेम बेस डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड -1. ओके, सो मस्ट बी इक्वल, तो हम इसे लिख सकते हैं m+6 इज इक्वल टू 7. सो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. 7 - 6 दैट इज 1. सो योर आंसर इज 1. m की वैल्यू क्या आएगी? यू हैव गेट 1. ओके, सेम आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए और कैसे कर सकते हैं आप. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 होल पावर -2. सो अगर होल पावर -2 है, सो व्हाट वी कैन डू, सी हियर, अगर हमारे पास में कोई नंबर है a/b होल पावर m, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर m अपॉन b की पावर m. ओके, अब यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है 2/3 होल पावर -2. इसका मतलब हुआ 2 की पावर -2 अपॉन 3 टू द पावर -2. सो दैट मीन्स ये जो 3 की पावर -2 है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं और 2 की पावर -2 को हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m. ओके, अंडरस्टैंड. सो हम इस फॉर्मूले को यूज करके, इस लॉ को यूज करके हम उसे लिखेंगे इस टाइप से. ओके, and our answer is 9/4. Okay student, now see this type what we do in this question. So here 1/3 whole power -2 minus 1/2 whole power -3 divided by 1/4 whole power -2. Now first of all we have to solve the bracket. We know that. ओके, सो ब्रैकेट हमारे पास में जो बिग ब्रैकेट होता है, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था. फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट, एंड देन जो हमारा, और उससे भी पहले होता है बेस, एक लाइन ब्रैकेट होता है. लाइन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, और जो हम जिसको बोलते हैं सिंपल वाली ब्रैकेट. ओके, स्मॉल ब्रैकेट. नाउ सबसे पहले अगर आपको चारों तरह के ब्रैकेट में से कोई भी 2 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे लाइन ब्रैकेट, देन कर्ली, देन बॉक्स एंड देन स्मॉल. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू हैव सॉल्व द ब्रैकेट्स. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ली ब्रैकेट हमें दिख रहा है, सो हम कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. सी 1 टू द पावर -2 अपॉन 3 टू द पावर -2 माइनस 1 टू द पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, हमने उसको भी खोल दिया, 1 की पावर -2 अपॉन 4 टू द पावर -2. नाउ हमें पता है a की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन a टू द पावर m. सो हम सेम वे यहाँ पर हम सब पावर्स को प्लस में ले लेंगे. 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 1 क्यूब, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 1 square is 1, we know that, and 2 cube is 8. So 9 minus 8 divided by 16. So we can write it 1/16. Okay. If you doing step by step question, then you have no doubt in the questions. Okay. Understand? So let's do the exercise 12.1. Okay. Now question number 1. What is question number 1? So question number 1 is 3 to the power -2. हमें evaluate करना है. So what is the meaning of 3 to the power -2? So we can write it 1 upon 3 की power 2, and we can write 1 upon 3 into 3 or 1 upon 9 is my answer. Okay, same way आपको ये 2 क्वेश्चन भी करना है. Okay, simplify and express the result in power notation with positive exponent. Okay, हमें simplify करना है and express करना है the result in power notation with positive exponent. अब positive exponent में ही हमें आंसर बताना है. Now here -4 to the power 5 divided by -4 to the power 8, both having -4 की पावर ही हैं. सो हम क्या करेंगे, पावर्स डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं. सो -4 की पावर -3. ओके, अब -4 टू द पावर -3 है. सो वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -4 टू द पावर -3, 1 अपॉन -4 इंटू -4 इंटू -4. पॉजिटिव एक्सपोनेंट बताना है हमें. नंबर नेगेटिव हो सकता है बट पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो माइनस में पावर है तो हम अपॉन में लिखेंगे. सो अवर आंसर इज 1/4 टू द पावर 3 और 4 4 जा 16, 16 4 जा
64. So our answer is 1 upon minus 64 also. Or you can write 1 upon 4 to the power 3. Okay, understand? Second one, 1 upon 2 cube whole square. So आप इसको पहले खोल लेंगे. क्या लिखेंगे आप इसे? आप इसे लिखेंगे 1 square upon 2 cube whole square. So ये बचेगा 1 square means 1, 3 into 2, because we know that a to the power m whole power n अगर होता है तो हम इसे लिखते हैं a to the power m into n. ओके, सो हमारा हो जाएगा 1 upon 2 की पावर 6 इज माई आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन डू सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड वन, minus 3 to the power 4 into 5 to the power 4 upon 3, 5 upon 3 whole power 4. ये आपका एग्जाम्पल जैसे ही होगा सेम. ओके, नाउ फोर्थ वन, यहाँ भी पावर सेम है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power 0. हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट. 3 to the power 0 plus 4 to the power minus 1. 3 to the power 0 plus 4 to the power minus 1 into 2 square. Now you know 3 to the power 0. If any number having power 0, that value is 1. So 1 plus 1 upon 4 की पावर 1 into 2 square. ओके, यहाँ तक हमें पता चल गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा हो गया 1 plus 1 upon 4 into 2 square. 2 square मीन्स 4 होता है. ओके, अब यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे. तो ये हो जाएगा 4 plus 1 into 2 into 2 4 होता है. वी नो दैट 4 से 4 कट हो जाएगा और आंसर इज 5. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. ओके, complete question number 3, 4 and question number 4. What about question number 4? In question number 4, evaluate 8 to the power minus 1. See, a very interesting question, this one. ओके, यहाँ पर सबकी पावर -1 है और सारे नंबर प्लस में है. सो आप लिखेंगे 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 whole power 0. ओके, आप इसका एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5 का. सो क्या एलसीएम आएगा? 60. 20 प्लस 15 प्लस कितना आएगा यहाँ पर? 12. ओके, सो होल पावर 0 आपको लगाना है. नाउ दिस इज 60. करिए, ऐड करिए 7, 47 अपॉन 60 होल पावर 0. सो आप लिखेंगे 47 टू द पावर 0 अपॉन 60 टू द पावर 0, 1 अपॉन 1. योर आंसर इज 1. ओके, अंडरस्टैंड? सो any number, if any number having power 1, then you can write it, any number having power 0, then you can write it 1. Okay, understand? Now question number 4, 8 to the power minus 1 into 5 to the power 3 upon 2 to the power minus 4. So 8 to the power minus 1 means हमें पता है. ओके, सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर -1 अपॉन 2 टू द पावर -4. आप इसको और सॉल्व कर लीजिए. 2 की पावर -3 इंटू 5 की क्यूब अपॉन 2 की पावर -4. अब ये -4 है, ये -3 है, दोनों डिवीज़न में है. तो हम इनको क्या करेंगे? 2 की पावर -3 माइनस 2 टू द पावर -3 माइनस -4 इंटू 5 की पावर -3 है ना. सो हियर -3 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर -3. सो यू कैन गेट 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर -3. ओके, +3 है. ओके, माइनस नहीं है.
सो हमारा आंसर आएगा 2 × 5 क्यूब. Okay, 2 × 5 cube, and you get your answer. Okay, so this way you can complete the question. Question number 4. Okay, so your homework is first, second, third and fourth question. Okay, have a good day.